Let's lift up our hands, everyone. आइए अपने हाथों को खड़ा करें. थोड़ा इस समय हम प्रभु की तरफ हम देखें. Let's look at Jesus. The entire solar system rotates around the sun. पूरा सौर मंडल जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है. Everywhere Jesus is hidden. हर जगह पर यीशु छुपा हुआ है. Even when you breathe, you are taking His name. जब भी आप सांस भी लेते हैं आप उसका नाम बोलते हैं. He is hidden everywhere. वो हर जगह छुपा हुआ है. His invisible qualities and His nature are hidden in the nature. उसकी अदृश्य गुणवत्ता और उसके अदृश्य स्वभाव हर जगह पर छुपे हुए हैं. या प्रकृति में छुपे हुए हैं. Yes. As the sun is in the center of the solar system, जैसे सूर्य सौर मंडल के बीचों बीच है, and every planet moves in their orbits, और हर एक ग्रह अपने इर्द गिर्द अपने खुद के चलन में घूमता है. it's a picture ये एक तस्वीर है that as long as Jesus is in the center, कि जब तक यीशु मसीह केंद्र में है, as long as He is first, जब तक वो पहला है, when He is in the center and when He is first, everything is working properly and fine. जब तक वो बीच में है और जब तक वो पहला है, हर एक चीज सही से काम करती है. So Father, we thank you. तो पिता हम धन्यवाद करते हैं. We thank you for your great love. हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए. We thank you that it is all about the Son of God, Jesus Christ. हम धन्यवाद करते कि सारी बातें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में है. Help us draw closer to you. हमारी मदद कर ताकि हम आपके करीब और आ सके. Help us make our life about you. हमारी मदद कर ताकि हम अपना पूरा जीवन आपके बारे में बना सके. Thank you for giving us greater revelations about you. धन्यवाद कि आपने हमें आपके बारे में महान प्रकाशनों को दिया है. For you are the morning star. क्योंकि आप उस सुबह के तारे हैं. You are the root of David. आप दाऊद की जड़ें हैं. You are the lion of the tribe of Judah. आप यहूदा का आप सिंह हैं. You are the great I am. आप महान हैं. You are the Amen. आप आमेन हैं. Thank you for loving us, Lord. हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद And it प्रभु. is our prayer that you will give us greater revelation, Holy Spirit, about Jesus. और पवित्र आत्मा ये हमसे आपकी ये हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमें यीशु मसीह का और अधिक प्रकाशन दे. Every day, हर दिन help us see Jesus better. हमारी मदद करता कि हम यीशु मसीह को बेहतर रूप से देख सके. Every day, help us see Jesus better. हर दिन हम यीशु मसीह को बेहतर रूप से देख पाए. And thank you for that unusual grace. और धन्यवाद उस असाधारण अनुग्रह के लिए. Your grace is multiplying in the ark. आपका अनुग्रह दी आर्क में बहुगुणित हो रहा And है. everything that you have kept for us, और जो कुछ चीजें आपने हमारे लिए रखी है, we are walking in it. हम उनमें चल रहे हैं. We are living it. हम उसे जी रहे हैं. We are manifesting it. हम उसे प्रकट कर रहे हैं. And we thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Amen. Please be seated, everyone. आइए हम सब बैठ जाइए. We will get into session number 2 now. हम दूसरे सत्र में जाएंगे. Let's go and see this topic, the grace of our Lord Jesus Christ, part 3. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसका भाग 2 पढ़ेंगे. Yeah, so part 3. Is it working? No, take out the freeze. Yeah, it went. Yeah, right. So, the grace of our Lord Jesus Christ, in the month of February, we'll be learning the grace of our Lord Jesus Christ. और फरवरी के महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह इसके बारे में पढ़ रहे हैं. Salvation के लिए you can climb the mountain, you can start the food, stop the food, jump and cry and do whatever. You can't get it
because salvation is only by grace. आप उद्धार के लिए कुछ खाना बंद कर सकते हैं, पर्वतों को चढ़ सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, रो सकते हैं, कूद सकते हैं, पर आपको उद्धार जो है वो ये सब करने से नहीं मिलता, अनुग्रह से मिलता है। Healing is by grace. चंगाई अनुग्रह से मिलती है। Prosperity is by grace. समृद्धि अनुग्रह से मिलती So है। only walk in those things that come by grace. तो सिर्फ उन्हीं चीजों में चलिए जो अनुग्रह से आता है। People like to struggle a lot unnecessarily. लोगों को बेमतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आदत है। You know, many people, they were trying to get salvation from so many different ways. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग जो है वो बहुत दूसरे दूसरे तरीकों से उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। Jesus came and said, salvation is by grace. It's by grace. Why you're struggling? यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार अनुग्रह के द्वारा है, तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? Everywhere we are going, we are taking a message, grace-based prosperity. हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, हमें संदेश को लेकर जा रहे हैं कि अनुग्रह आधारित समृद्धि। That why you are struggling for prosperity? Because prosperity comes by grace. आप क्यों समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि समृद्धि तो अनुग्रह से आती है। Look at healing. आप चंगाई को देखिए। Why you are struggling for healing so much? Healing comes by grace. आप चंगाई के लिए इतना ज्यादा आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? चंगाई अनुग्रह के द्वारा आती है। Everything in the kingdom comes by grace. राज्य में हर एक चीज अनुग्रह से आती है। Because if it doesn't come by grace, then you don't give glory to Jesus. क्योंकि अगर वो अनुग्रह से नहीं आता तो आप यीशु मसीह को महिमा नहीं देंगे। Okay, if there is any verse in the Bible that talks about all the entire Bible, it's this verse, next verse. अगर कोई बाइबल में ऐसा वचन है जो पूरे बाइबल के बारे में एक साथ बात करता है तो ये वचन है। Very beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है ये। The entire Bible in one verse. पूरा बाइबल एक वचन में। How beautifully the Apostle Paul has spoken by the Holy Spirit. कितना सुंदरता से प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन चीजों को बोला है। He said, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. उसने कहा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन। Can you imagine three important things that cover the entire Bible in one verse? क्या आप देख सकते कि तीन महत्वपूर्ण चीजें जो पूरे बाइबल को एक वचन में समित कर लेती है? It is grace, love and communion. ये है अनुग्रह, प्रेम और सहभागिता। Very beautiful. बहुत सुंदर। So in the month of February, we'll be talking about grace. March, we'll talk about love of God. And April, we'll talk about communion of the Holy Spirit. हम फरवरी के महीने में अनुग्रह के बारे में बात करेंगे, मार्च में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे और अप्रैल के महीने में हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में बात करेंगे। Now, look at what grace is. You already know. तो आप जानते हैं अनुग्रह क्या है, फिर देखेंगे। Grace means unmerited favor. अनुग्रह का अर्थ है अयोग्य कृपा। You don't have the marks to pass, but God gives you passing mark. You don't deserve it, He gives it to you anyhow. आपको परीक्षा में पास होने के लिए आपके पास उतने मार्क्स नहीं है, पर परमेश्वर आपको उतने मार्क्स देता है और वो अनुग्रह है। It's favor without merit. वो योग्यता के बगैर आने वाली कृपा है। Because in the eyes of God, nobody has merit. क्योंकि परमेश्वर की आंखों में किसी के पास भी योग्यता नहीं। So grace is unmerited favor. तो अनुग्रह अयोग्य कृपा है। That means God selects you by Himself, not because of who you are and what you do. इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने खुद से आपको चुनता है, इसके आधारित नहीं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। Matthew was a tax collector, but by grace, without any merit, he was selected to be an apostle of Jesus Christ. मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, पर बिना किसी योग्यता से वो यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए चुना गया अनुग्रह के द्वारा। Unearned provision.
बिना कमाई प्राप्त प्रावधान। Many people don't know this. बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। It is our desire that all people in the body of Christ should experience this unearned provision. ये हमारी इच्छा है कि मसीह की देह में सब इस बिना कमाई प्राप्त प्रावधान को महसूस करे। I see some people मैं कुछ लोगों को देखता हूँ in Mumbai and wherever we go. मुंबई और जहाँ भी हम जाते हैं, There are some sons and daughters, they enjoy their father's resources. कुछ ऐसे बेटे होते हैं, बेटियां होती है जो अपने पिता के संसाधनों का बहुत लुत्फ उठाते हैं। They didn't earn it. उन्होंने कमाया नहीं, They are not, they didn't get it, they didn't achieve it. Their dad has lot of finances, and the kids, they ride around in BMWs, and they are just enjoying their daddy's resources. और कुछ उन्होंने कभी कुछ कमाया नहीं, वो बस अपने पिता के पास बहुत ज्यादा आर्थिक चीजें हैं और वो अपने पिता की जो महंगी महंगी गाड़ियां उन्हें चलाते हैं, उनका बहुत मजा उठाते थे। They didn't earn it. उन्होंने कमाया नहीं है, They are just enjoying their earthly father's resources. They enjoy it. वो आपने जो पृथ्वी के माता पिता है उनके जो संसाधन है उसका आनंद उठाते हैं। But somehow we like to live like orphans, believers. We like to live like orphans. पर कभी कभी हम विश्वासी जो है हमें अनाथों की तरह जीना अच्छा लगता है। We feel like we don't have anybody. हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, So it's all on us. तो ये सब हमारे ऊपर है। Everything what we can do, it's on us. हम क्या कर सकते हैं वो सब हमारे ऊपर निर्भर है, And therefore we struggle. और इसीलिए हम संघर्ष करते हैं, And that's not our life. और ये हमारा जीवन नहीं। We must learn to enjoy daddy's resources. हमें अपने पिता के संसाधनों का मजा उठाना सीखना है। He has lot for everyone. उसके पास हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। So it is a provision that is unearned. तो ये ऐसा प्रावधान है जो आपने कमाया नहीं। And like I told you, the taste is very good. और मैंने जैसा आपको कहा था उसका स्वाद बहुत अद्भुत है। Earned provision has little taste, unearned provision का बहुत बेहतर taste. जो आपने प्राप्त करके प्रावधान कमाया उसका थोड़ा स्वाद तो है, पर जो आपने बिना कमाई का प्राप्त प्रावधान कमाया है, मिला है आपको, उसका स्वाद अद्भुत होता We है। are just enjoying daddy's resources. हम सिर्फ अपने पिता के संसाधनों का मजा उठा रहे हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, your father clothes the flowers. He clothes the father. He clothes the flowers. उसने कहा कि वो भूमि के जो फूल है उन्हें कपड़े पहनाता है, Better than Solomon. सुलोमोन से भी अधिक अच्छे। So obviously the father has some resources. तो इसका अर्थ है कि पिता के पास कुछ संसाधन है। He said, the father feeds the birds. कहता है कि परमेश्वर पशुओं को, पक्षियों को खिलाता है। So the father has something. तो पिता के पास कुछ है। He said, why do you worry about what we will eat, what we will drink, what we will wear? You have a father. You're not an orphan. He has so much resources, and learn to enjoy the resources of the father. तो वो कहता है कि तुम इस बात में चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आपका एक पिता है, उसके पास बहुत सारे संसाधन है और उन संसाधनों का मजा उठाना आप सीखिए। When you step into grace, जब आप अनुग्रह में कदम बढ़ाएंगे, flood of resources will come upon you. संसाधनों की बाढ़ आपके ऊपर आएगी। सब बोलिए amen. आमीन। I live in that. मैं उसमें जीता हूँ। I've been living in that from a long, long time. मैं उसमें बहुत समय से जी रहा हूँ। Amen. आमीन। So, third one, grace is divine empowerment. और तीसरा अनुग्रह है दिव्य सामर्थ्य। It will empower you to do whatever God has called you to do. ये आपको सशक्त करता है, आपको सामर्थ्य देता है वो सब करने के लिए जो भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। Galatians 1:11. गलातियों 1:11। There's some disturbance in this. Galatians 1:11. गलातियों 1:11। Today we are going to learn about the Apostle Paul, हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, who of course is the one introduced the gospel of grace to humanity. जिसने इंसानियत को वो अनुग्रह का सुसमाचार दिया। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है। But I certify you, brothers, that the gospel which was preached by me is not after man. हे भाइयों, मैं तुम्हें जताया देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का आसान नहीं। He said it's not after man. वो कहता है कि ये मनुष्य का आसान नहीं। Verse 12.
वचन 12, I neither received it of a man, neither was I taught it, but this gospel came to me, the gospel of grace came to me by the revelation of Jesus Christ. क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर ये यीशु मसीह के प्रकाश, यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुग्रह के द्वारा मिला। He said, when I had an encounter with Jesus, grace was released on my life. वो कहता है कि जब मेरा मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ तब अनुग्रह मेरे जीवन में आजाद हुआ। He said, no man gave me this gospel of grace. No man taught me, but I got it when Jesus Christ was revealed to me. वो कहता है किसी भी मनुष्य ने, किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये अनुग्रह का सुसमाचार नहीं सिखाया, ना दिया, वो मुझे यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के द्वारा मिला। You know that he was on the way to Damascus, क्या आप जानते हैं कि वो दमिश्क के राह पर जा रहा था and suddenly there was a light, और अचानक उजाला हुआ and there was a revelation of Jesus on the life of Paul. और फिर यीशु मसीह का प्रकाशन पौलुस के जीवन पर आया। He said, I received that gospel by the revelation of Jesus Christ. वो कहता है कि मैंने उस समाचार का ग्रहण यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा किया। Brothers and sisters, जब यीशु का प्रकाश आपके लाइफ में बढ़ेगा, अनुग्रह आपके लाइफ में बढ़ेगा. That's Amen. what he's saying. Grace doesn't increase by other things. Primarily, when the revelation of Jesus comes to you, grace will increase in your life. अनुग्रह दूसरी किसी चीज से नहीं बढ़ता है। अनुग्रह प्राथमिकता से यीशु मसीह का जो प्रकाशन अगर आपके जीवन में बढ़ता है, Yes. तब अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा। He said, I received my call when I got a revelation of Jesus. उसने कहा जब मैंने यीशु मसीह के प्रकाशन को जाना तब मुझे मेरी बुलाहट मिली। You may be very much concerned about your calling. What should I do? What God wants me to do? What God wants me to do? Just study Jesus. As the revelation of Jesus becomes bigger, you will know what you're supposed to do. आप शायद सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। सिर्फ यीशु मसीह का अध्ययन करें। जैसा आप उसका अध्ययन करेंगे वैसा आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। इसको ध्यान से देखिए. Look at the statement Paul says. आप उस वाक्य रचना को देखिए जो पौलुस कहता है। I receive by the revelation of Jesus. I received by the revelation of Jesus. The revelation of Jesus, he received grace. और वो कहता है कि मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मिला। उसने कहा कि मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा वो अनुग्रह मिला। Praise God. Amazing. अद्भुत। Well, if you are trying to find out what your call is in life, अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपकी बुलाहट आप उसे जान ले, it's the revelation of Jesus. ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। In the revelation of Jesus, it will be revealed to you. यीशु मसीह के प्रकाशन में वो आपको मिल जाएगा। Verse 13. वचन 13, For you have heard of my behavior in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. यहूदी मत में जो पहले मेरे चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। It's like Matthew who used to take tax. He was a tax collector. ये मत्ती की तरह है जहां मत्ती चुंगी लेता था लोगों से। Same like Paul. He is killing the church of God. He is harassing believers. He doesn't deserve this gospel of grace. और पौलुस भी वैसा ही था कि वो ये कलीसिया को और विश्वासियों को सताता था और उन्हें मारता था और वो इस अनुग्रह के सुसमाचार के लायक नहीं था। But grace is unmerited favor. पर अनुग्रह एक अयोग्य कृपा है। It doesn't come to those who merit it. It comes to those who don't have any merit. वो उनकी ओर नहीं आता जो योग्य है, वो उनकी ओर आता है जो अयोग्य है। Why would God give someone who is harassing believers, killing them, putting them in prison? He is entrusting him with the gospel of grace. कैसे परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को अपना अनुग्रह का सुसमाचार दे सकता है, उस पर भरोसा कर सकता है उस बात के लिए जो कलीसिया को सताता है उन्हें और विश्वासियों को जेल में डालता है? Because it is grace. क्योंकि वो अनुग्रह है, Unmerited favor. अयोग्य कृपा। Verse 14. वचन 14, And profited in the Jews' religion above many of my equals,
being more exceedingly zealous of the traditions of my father. और अपने बहुत से जाति वालों में से जो मेरे अवस्था के यहूदी मत में बढ़ते जाता था और अपने बाप दादाओं के व्यवहार में बहुत ही उत्तेजित था. You couldn't be excited about the wrong thing. आप गलत चीजों के बारे में उत्तेजित हो सकते हैं. Somebody said, I was so passionate. What is the use of passion when the journey in the destination is wrong? क्या फायदा? आप कोई कहता कि मैं बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरा हूं. क्या फायदा उस उत्तेजना का जब आपकी मंजिल या आपका यात्रा अलग है? He is doing something वो कुछ कर रहा है which he thinks is the call of God on his life. जो वो सोचता है कि ये परमेश्वर की बुलाहट है उसके जीवन पर. He is very passionate. और वो उसके बारे में बहुत जुनून से भरा है. Don't follow the world's advice. The world's advice say follow your passion. इसको Jesus बोल रहा है मत follow your passion. आप कृपया संसार के सिद्धांतों पर ना चलें. संसार कहता है कि आपने जुनून का आप पीछा करें. यीशु मसीह कहता है He कि is उनके पीछे ना जाए. exceedingly passionate. He is exceedingly passionate about his religion. वो अपने बाप दादाओं की जो परंपरा है उसके बारे में बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरा है. Like someone said, follow your heart. कोई कहता है कि अपने हृदय का पीछा करो. Wrong advice. गलत सुझाव है ये. Someone said, follow your passion. ये कहता है कि आपने जुनून का पीछा करो. Look at this guy following his passion. इस व्यक्ति को देखिए जो अपने जुनून का पीछा कर रहा है. His passion is, he thinks his passion is to kill believers. He thinks that's his call. वो उसका जुनून है कि वो विश्वासियों की हत्या करे और वो सोचता है कि ये उसकी बुलाहट है. Just because you have passion doesn't mean you're in the call of God. क्योंकि आपके पास जुनून है इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर की बुलाहट में हैं. I have a passion to do this. मुझे ये करने में उत्तेजना है, मुझे ये करने में जुनून है. Doesn't mean you're called to do it. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो करने के लिए बुलाए गए हैं. It's when you encounter Jesus, he will show you where you should be passionate about. ये तब होता है जब अब यीशु मसीह के साथ आपकी जब मुलाकात होती है तब वो आपको बताता है कि आपको कहां पे जुनून से भरना है. So all of the worldly advice is so foolish. तो जितने भी संसार के सुझाव है बहुत मूर्खता है. They say follow your heart. वो कहता है अपना दिल का पीछा करे. They say follow your passion. वो कहता है कि अपना जुनून का पीछा करे. He said no, follow Jesus and Jesus will tell you where you should be passionate. हम कहते हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण करें और यीशु मसीह आपको बताएगा कि आपका हृदय, आपका जुनून आपको कहां रखना है. Because you could be passionate about something that is so, maybe you're very selfish and that's why you're passionate about it. शायद से आप स्वार्थी और उसके बारे में बहुत ज्यादा जुनून से भरे हो. So brothers and sisters, just because you have a passion for something doesn't mean it's God's call for your life. तो भाइयों बहनों, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में आप बहुत जुनून से और उत्तेजना से भरे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपकी परमेश्वर की बुलाहट हो. Some people have mistaken passion for God's call. कई लोगों ने बुलाहट को परमेश्वर की बुलाहट को जुनून के साथ बहुत ज्यादा गैर समझ कर लिया है. Just because they are passionate about something, they say this is God's call because I'm very passionate for it. क्योंकि किसी चीज के बारे में बहुत जुनून से भरे हो सोचते हैं कि ये परमेश्वर की बुलाहट है क्योंकि इसके बारे में बहुत उत्तेजना से भरा हो. You could be passionate about something and God has never called you to do it. आप किसी चीज के बारे में जुनून से भर सकते तो है पर आप वो ऐसा हो सकता है कि वो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया ना Some say, हो. I have passion. कोई कहेगा मुझे करने में बहुत जुनून है, Passion. मुझे करने का बहुत जुनून है. But passion should not dictate movement. It's Jesus who should dictate movement. पर आपका जुनून आपके कदमों को नहीं बताना आधारित नहीं होना चाहिए, पर यीशु मसीह है जो आपके कदमों को आधारित करता है. Amen. This will help us. It will help us. और ये हमारी बहुत मदद करेगा. So he is passionate about killing believers. That's his passion. तो वो विश्वासियों की हत्या करने में बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरा है. Exceedingly passionate. और बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है. Verse 15. वचन 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, called me by his grace. और परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया. You know, although he was killing believers and all that, God
called him when he was in his mother's womb. भले ही वो विश्वासियों की हत्या कर रहा था, परमेश्वर ने उसको अपनी माता के गर्भ से ही बुला लिया था। Your calling is from your mother's womb. आपकी बुलाहट आपकी माता के गर्भ से ही है, सुनिश्चित है। You didn't come out and God सोच रहा है इसको क्या दूं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर है, आप परमेश्वर सोच रहे हैं कि आपको क्या दे। इसका बिहेवियर देखता हूं थोड़ा, कितना मार्क्स लाता है देखता हूं। While you were inside, he already decided what you're supposed to do. जब आप अपनी माता के गर्भ में थे, उसने पहले से निर्णय कर लिया कि आप क्या करेंगे। That shows the planning of God. ये परमेश्वर की योजना करने की क्षमता को दिखाता है। He is well planned. वो पहले से ही बहुत अच्छे से योजना बनाए बैठा है। Before a baby comes out, he knows what the baby is supposed to be doing. वो बच्चा बाहर आने से पहले वो जानता है उस बच्चे को क्या करना है। You are separated for the call of God from your birth. Whatever you're called to do, from birth you're separated. आपकी जो भी बुलाहट है, आप अपनी बुलाहट के लिए आपके माता के गर्भ से ही आपको परमेश्वर ने अलग की करके रखा है। Before you do anything good or bad, he already selected you. आप कुछ गलत या भला करने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। He calls you by his grace, not because you're a man of prayer. उसने आपको अपने अनुग्रह से बुलाया है, इसके लिए नहीं बुलाया कि आप एक प्रार्थना वाले व्यक्ति है। He said he separated me when I was still a seed in my mother's womb. उसने कहा जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, उसने उस समय से मुझे ठहराया। He called me by his grace. उसने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। Very important for all the parents here. बहुत महत्वपूर्ण है हर एक माता पिता के लिए यहाँ। आपका बेटा, आपकी बेटी माता के गर्भ से ही ठहराया गया है, तो माता पिता की जिम्मेदारी है ये पता करना कि किस बात के लिए ठहराया गया है। आमीन। ताकि आप उन शब्दों को उसके ऊपर बोल सकें, बेटे के ऊपर बोल सकें, बेटी के ऊपर बोल सकें और तीर के समान उनको उस जगह में आजाद कर सकें। प्रेज गॉड। आमीन। It says, it pleased God who separated me from my mother's womb and called me not by merit, called me not by color, called me not by location, but he called me by grace. वो कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जिसने मुझे अपनी माता के गर्भ से मुझे ठहराया, उसने मुझे अपने रंग के द्वारा नहीं, अपनी जगह के द्वारा नहीं, मेरे योग्यता के द्वारा नहीं, पर मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। Someone said मेरा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है इसलिए God called me. कोई कहता है कि मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। गलत बाइबल पढ़ा। मेरा पर्सनालिटी हाइट सब अच्छा है तो प्रभु ने देखा इसको तो लेना ही पड़ेगा। He is so good. Wrong, you're wrong, you're wrong. आप गलत है। He called you when you were a seed in your mama's womb. उसने आपको तब बुलाया जब अपनी माता के गर्भ में आप सिर्फ एक बीज थे। So, anyways, Paul is born. पौलुस का जन्म हुआ। He is sitting at the feet of Gamaliel. वो गमालियल की कदमों के पास बैठा था। He is an expert in the law of Moses. He is a Pharisee. वो मूसा के कानून में बहुत ज्यादा अद्भुत और उत्तम था, वो और वो फरीसी था। And then he's passionate about persecuting the church. और वो कलीसिया को सताने में बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरा था। But what about the call that God gave him at his mother's womb? पर उस बुलाहट का क्या जो परमेश्वर ने उसकी माता के गर्भ में उसे दी थी, When will it come to pass? वो पूरी कब होगी? Next verse. अगला वचन। To reveal his, that means with an encounter with Jesus, that birth separation comes into manifestation. और यीशु मसीह के साथ वो एक बुलाहट जो उसको माता के गर्भ से अलग बुलाया गया था, वो कारण तब प्रकट होता है। To reveal his son in me. जब इच्छा हुई तो उसने मुझे अपने पुत्र को प्रकट किया। Wow. That I might preaching among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं तो न मैं मांस और लहू से सलाह लूं। Okay, first slide. पहला स्लाइड। An encounter with Jesus is an encounter with grace. यीशु से मुलाकात करना अनुग्रह से मुलाकात करना है। Because grace is a person and his name is Jesus. क्योंकि अनुग्रह एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु मसीह है। You know, he was pursuing his own call. He was persecuting believers. He was thinking he's called to do that. One day,
When did the shift happen? The shift happened when he encountered Jesus, when there was a visitation with Jesus. When he had a visitation with Jesus, he realized what he was separated for. He realized what he was called for. Before that encounter, he was pursuing his own ambition, following his own agenda, following his own dream. But when he had an encounter with Jesus, he had an encounter with grace, and he realized what he was born to do. जब वो पहले यीशु से मिलने के पहले वो अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा था, पर वो बदलाव कब हुआ? वो बदलाव तब हुआ जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ। और जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, वो कारण जिसके लिए माता के गर्भ से चुना गया था वो प्रकट हुआ, और उसके सारे चीजें बदल गए, और तब वो उस चीजों के लिए नियुक्त किया गया। Many people, बहुत से लोग दुनिया में, they are doing things that they are not called to do. जैसे पौलुस की तरह वो कलीसिया को सताने में लग रहे हैं। जुनून बहुत ज़्यादा है, लेकिन रास्ता गलत है। लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा, पैशन है, लेकिन रास्ता गलत है, लेकिन वो चलते जा रहे हैं। कब उनके जीवन में बदलाव होता है? जब यीशु के साथ मुलाकात होता है। सिमिलरली व्हेन यू प्रेइंग फॉर समवन, किसी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, कब उनका जीवन बदलता है? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु के साथ इस व्यक्ति का मुलाकात हो। क्योंकि जब यीशु का मुलाकात होता है, एनकाउंटर होता है, जीसस चेंजेस डायरेक्शन, Jesus changes destination. He reveals to them what is their actual call in life. यीशु मसीह उनके दिशा को बदल देता है, यीशु मसीह उनके निर्देशन को बदल देता है, और यीशु मसीह उन्हें दिखाता है कि उनकी बुलाहट क्या है। So when you're praying for your family members, तो जब कभी भी आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, and you feel like they're doing good, आपको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, they're earning some things, कुछ कमा रहे हैं, or maybe they're comfortable, और वो अपने जीवन में बहुत आरामदायक है, that's not the point. और ये मुद्दा नहीं है। The point is, are you doing what you're separated from your mother's womb to do? Are you doing that? Are you doing your call that he has given you by grace? That's the point. और मुद्दा ये है कि क्या आप उन बातों को कर रहे हैं जिसके लिए आपको माता के गर्भ से पहले ठहरा गया था? क्या आप वो बुलाहट को जो आपको अनुग्रह के द्वारा मिली, आप उसे पूरा कर रहे हैं? So here is Saul, यहाँ पे सॉल है, passionate in the wrong direction. वो गलत चीजों में वो जुनून से भरा है। So some intercessor is praying for Paul, तो कोई मध्यस्थ व्यक्ति पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहा and है, suddenly Jesus appears. और अचानक यीशु मसीह आते हैं, He has an encounter with Jesus, उसका यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात होता है, and Paul says, "Who are you, Lord?" और पौलुस कहता है कि तुम कौन हो प्रभु? He said, "I am Jesus." उसने कहा कि मैं यीशु हूँ। Next question, what shall I do? उसका अगला सवाल कि मैं क्या करूँ? Jesus said, "I also don't know." यीशु ने कहा मुझे भी नहीं पता, I also don't know. मुझे भी नहीं पता। No, Jesus already know, because he's separated from the mother's womb. He already has a plan. नहीं, यीशु वो जानता था, उसने पहले से उसको अपनी माता के गर्भ से अलग रखा था, और उसके लिए जो योजना थी वो जानता था। And so Paul said, "What should I do now?" तो पौलुस ने कहा मुझे क्या करना चाहिए अभी? He said, "Go into the city of Damascus and you will be told what you must do." उसने कहा कि तुम दमिश्क के शहर में जाओ और तब तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। In his revelation, callings are revealed. उसके प्रकाशनों में बुलाहटें आजाद होती है। In his revelation, in an encounter with him, roads change. उसके प्रकाशन में उसके साथ मुलाकात करने से रास्ते बदल जाते हैं। He was so passionate about killing believers. अभी पूरा घूम गया. How did he turn? At the revelation of Jesus Christ. वो विश्वासियों को सताने में बहुत जुनून से भरा था, पर ये सब कैसे घुमा? यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा। It's all about him. ये सब उसके बारे में If you है। don't know what you're supposed to do, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना and है, if you're doing what you're called to do, और आप कर रहे हैं जो आपको करने के लिए बुलाया गया है, keep looking at him. आप उसकी ओर देखते रहे। Because at the end of the day, कि दिन के आखिर में when it's all said and done, जब हर कुछ चीजें कहकर समाप्त हो जाएगी, you and I, we will stand in front of Jesus. हम आप और मुझे यीशु मसीह के सामने खड़े रहना है। That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। So an encounter with Jesus is an encounter with grace. तो यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना, अनुग्रह के साथ मुलाकात करना है। Next point. Let's go to next point. अगला पॉइंट, Next point. Yeah. Grace empowered him to recognize and fulfill his divine call. He thought his call is to kill believers.
Grace helped him recognize his actual call. अनुग्रह ने उन्हें उनकी दिव्य बुलाहट को पहचानने में और पूरा करने के लिए सामर्थ्य। उन्हें लगता था कि उनकी बुलाहट विश्वासियों की हत्या करना है, पर अनुग्रह ने उनको सही पहचान दी। He was passionate about the wrong thing. वो गलत बातों में जुनून से भरा हुआ था। Just because we are passionate doesn't mean it's the right thing. क्योंकि हम किसी चीज के बारे में जुनूनी है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम वो सही है। In our life, passion, it's not the leader. The Holy Spirit is the leader. हमारे जीवन में जुनून हमारी अगुवाई नहीं करता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। Our passion and our emotions don't lead us. It is the Holy Spirit who leads us. हमारे जुनून और हमारी भावनाएं हमें हमारी अगुवाई नहीं करते, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। So when he had an encounter with Jesus जब उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ and continued to look at Jesus, और वो यीशु की ओर देखता रहा, he empowered grace, empowered him first of all to know what your call is so that he goes to the right direction, and then gave him the power to fulfill the call. और अनुग्रह ने उसे सशक्त किया। क्यों? पहला, उसको एक दिव्य बुलाहट देने के लिए जहां पे उसे जाना चाहिए, और दूसरा, उस बुलाहट को पूरा करने में It changed his direction. उसने पूरी उसकी दिशा बदल दी। इधर भागते 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 यीशु के साथ मिला का तो अभी इधर भाग अभी now he is running this side. How did it happen? It happens at the revelation of Jesus और ये Christ. कैसे हुआ? ये यीशु मसीह के अनुग्रह के और उसके प्रकाशन के द्वारा हुआ। Grace empowered him. अनुग्रह ने उसे सशक्त किया। The revelation of Jesus empowered him यीशु मसीह के प्रकाशन ने उसे सशक्त किया to recognize, identify and fulfill his divine call. ताकि वो अपनी बुलाहट को पहचान सके, उसे जान ले और उसे पूरा करे। So start now. तो शुरुआत अभी करे। Look at, you don't have time. आपके पास समय नहीं है, Time is very short. समय बहुत कम है। We have less time. Jesus is coming back. यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, हमारे So पास उसका कम start समय now है। looking at him तो अभी से शुरू कर उसकी ओर देखने के लिए, so that he will reveal to you which direction you should be taking. तो वो आपको दिखाएगा कि आपको कौन सी दिशा लेनी है, And you will have the power to fulfill your divine call. और आपको अपनी दिव्य बुलाहट पूरी करने का सामर्थ्य मिले। By birth, your call, you've been called. From birth, you've been called. जन्म से आपको बुलाया गया है। जन्म से You don't make a call. आप खुद की बुलाहट नहीं बनाते। From birth, you have a call. जन्म से आपकी एक बुलाहट है। From birth, you have been separated. जन्म से आपको अलग करके रखा है। But we follow so many different things, you know. पर हम बहुत सारे दूसरे से चीजों का अनुसरण करते हैं। Like Matthew, he thought his life is something else, and Paul was doing something else. All of it changed when they had an encounter with Jesus. जैसे मत्ती और पौलुस को लगता था कि उनका जीवन में कुछ कर उनकी बुलाहट अलग है, ये सब तब बदला जब उनका यीशु के साथ एक मुलाकात हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका मुलाकात उसके साथ हो और आप बदले नहीं. It's impossible. That whatever, because somebody had to intercede for Saul. Through that intercession, Jesus manifested himself. किसी को तो शाऊल के लिए मध्यस्थता करना था, और उस मध्यस्थता के द्वारा यीशु मसीह और सौल का एक प्रकटिक आमना सामना हुआ। We don't even know who those people are. हम जानते भी नहीं कि वो लोग कौन हैं। One of the most powerful ministries on earth is intercessory ministry. इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्यशाली सेवकाई मध्यस्थता की सेवकाई है। And it is so powerful that most people don't do it. और वो इतना सामर्थ्य है कि बहुत सारे लोग करते ही नहीं। Because it's behind the scenes. Nobody sees you. क्योंकि पर्दों की पीछे वाली सेवकाई, इसमें कोई देखता नहीं है आपको। Nobody knows that you are praying. कोई जानता नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। You are praying early morning. आप सुबेरे उठ के प्रार्थना कर रहे Late हैं। nights you are praying. आप देर रात प्रार्थना कर रहे The हैं। only people who do it are the ones who don't care about publicity. ये वही लोग हैं जो करते हैं, जो प्रसिद्धता के पीछे नहीं भागते। Intercessors are the most powerful ministers on earth. मध्यस्थता करने वाले इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थी सेवक है। They're very powerful. बहुत सामर्थ्यशाली है। And unless as a parent, unless you intercede for your children, it's very difficult for them to come on the right track. It's almost
It can't happen. और माता पिता होने के नाते अगर आप मध्यस्थता नहीं करते तो ये बहुत कठिन है कि आपके बच्चे सही मार्ग पर आए, Because somebody has to intercede for the children. किसी को तो आपके बच्चों के लिए मध्यस्थता करना होगा, Somebody has to go in the secret place and pray for the children. किसी को तो उस रहस्य के स्थान पर जाके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना होगा, Because most of the children, they are pursuing things that they shouldn't be pursuing. क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें जिसके पीछे उन्हें भागना नहीं चाहिए। And when parents pray, और जब माता पिता प्रार्थना करते there will हैं come a moment when Jesus will manifest himself. And when he manifests himself, their directions will change. एक समय आएगा जहां पे यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा और जब वो प्रकट करेगा चीजें बदलेंगी। Amen. आमीन। So grace empowered him तो अनुग्रह ने उसे सामर्थ्य दी to recognize what he was called to do. ताकि वो अपनी दिव्य पहचान, अपनी दिव्य बुलाहट को पहचान ले। So next time somebody says, follow your heart, follow your passion, off कर दीजिए TV. तो अगली बार कोई कहता है कि आपने हृदय का पीछा करे, अपने जुनून का पीछा करे, तब टीवी बंद कर दीजिए। Yeah, off it. आप बंद कर दीजिए टीवी। Okay, next slide. अगला स्लाइड। Now, this is the point I want to touch in next 15 minutes. Grace made him exceedingly diligent. अनुग्रह ने उन्हें अत्यधिक परिश्रमी और लगनशील बनाया। Grace destroys laziness. It destroys it. अनुग्रह आलसीपन को नष्ट कर देता है। Grace not only helped him recognize his call, not only helped him fulfill his call, but it made him exceedingly hardworking. अनुग्रह ने सिर्फ उससे अपनी बुलाहट बताई नहीं, पर उसने उसे अत्यधिक परिश्रमी और लगनशील भी बना दिया। Anyone who understands grace, they will be extremely hardworking people. जो भी व्यक्ति अनुग्रह को समझता है वो अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति होता है। They are very hardworking. बहुत परिश्रमी व्यक्ति लोग It's होते about हैं। brothers, it's about sisters, it's about children, wherever you are. If you truly understand grace, you will become exceedingly hardworking, diligent. ये भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में अगर आप अनुग्रह की समझ रखते हैं पूरी तौर से तो आप अत्यधिक परिश्रमी और लगनशील बन जाते हैं। Think about someone who's in the house, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो घर में है, who's looking at Jesus. जो यीशु को देख रहा है, Because grace comes by looking at Jesus. क्योंकि अनुग्रह यीशु को देखने से आता है। So when you look at Jesus through the word, grace comes to you, and that grace makes you not just diligent, it makes you exceedingly diligent. और आप जैसे यीशु को देखते हैं तो अनुग्रह आपकी ओर आता है और वो अनुग्रह सिर्फ आपको परिश्रमी नहीं, वो आपको अत्यधिक परिश्रमी बनाता है और वो आपको लगनशील बनाता है। Your family should testify about it. आपका परिवार उसके बारे में आपकी गवाही देनी चाहिए। You're looking at Jesus, आप यीशु को देख रहे हैं and you're becoming more lazy. और आप और आलसी हो रहे हैं, You're not looking at Jesus. आप यीशु को नहीं देख रहे। Because Jesus said, my Father works and I work. क्योंकि यीशु कहता है कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। That means Jesus is exceedingly diligent. Jesus is not lazy. इसका अर्थ है कि यीशु मसीह लगनशील है, वो आलसी नहीं है। So when you truly know grace, when you're looking at him, he makes you exceedingly diligent. तो जब आप उसको देखते हैं, आप अनुग्रह को देखते रहते हैं तो वो आपको अत्यधिक परिश्रमी बनाता है। Not just diligent, that is human strength. Exceedingly diligent, that's God's strength. परिश्रमी नहीं, वो तो मानवीय सामर्थ्य है, पर वो आपको अत्यधिक परिश्रमी बनाता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। Grace will destroy laziness. अनुग्रह आलसीपन को तबाह कर देगा। So anyone who says that I am walking in grace and they are lazy, they don't understand grace. तो जो भी व्यक्ति आप देखते हैं जो कहता है कि मैं अनुग्रह में चलता हूँ और वो आलसी है, वो व्यक्ति अनुग्रह को नहीं जानता। Grace doesn't make you lazy. अनुग्रह आपको आलसी नहीं बनाता। Let me talk about Paul. Let's go forward. हम आगे जाके पौलुस के बारे में बात करेंगे। Look at what Paul says in 1 Corinthians 15:9. देखिए पौलुस क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 15 का 9 में।
Now, if anybody, I believe nobody is lazy here. If you are lazy, you might be thinking, Pastor, मेरे बारे में बोल रहा है आज. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हम में कोई भी आलसी नहीं है. अगर कोई आलसी होगा तो परमेश्वर के पास कोई सोच सकता है कि पास्टर मेरे बारे में बात कर रहा I'm है. not talking about you. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा. I'm just saying what God is telling me to say. मैं बस वही कह रहा जो परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए कहा है. 1 Corinthians 15:9. पहला कोरिन्थियों 15:9. For I am the least of the apostles, and I should not even be called an apostle because I persecuted the church of God. क्योंकि मैं प्रेरित हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था. Because it's by grace. You don't become apostle just like that. You become by grace. क्योंकि ये अनुग्रह के द्वारा होता है. आप प्रेरित ऐसे नहीं बन जाते, आप प्रेरित अनुग्रह के द्वारा बनते हो. Verse 10 देखिए. वचन 10 देखेंगे. By the grace of God, I am what I am. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ. But I labor more abundantly than they all. परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया. सब बोलिए बढ़कर परिश्रम. बढ़कर परिश्रम. थोड़ा जोर से बोले. सब परिश्रमी लोग बोलिए. थोड़ा आवाज जोर से बोलिए. परिश्रम, सिर्फ परिश्रमी लोग बोलिए, बाकी कोई. सब बोलिए बढ़कर परिश्रम. बढ़कर परिश्रम. सब परिश्रमी लोग हैं यहाँ, कोई आलसी नहीं. इसे लिसन, labor more abundant. It's not human strength. Please understand, it's not human strength. This is God's empowerment, making you labor more than all of your colleagues put together. वो ये नहीं कहता कि आप परिश्रम किया, वो कहता है बढ़कर परिश्रम किया. ये कोई मानवीय सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य है. और जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, आपने कर्मचारियों से ज्यादा अधिक आप काम करेंगे. We were in Nagar. हम नगर में थे, अहमदनगर में थे. Some of my sons were sitting. और मेरे कुछ बेटे बैठे थे. And I told them, और मैंने उनसे कहा, I said, you know, there will come a time we will step into crores and tens of crores and all that. और मैंने उनसे कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि हम करोड़ों में और 10 करोड़ों में जाएंगे. But I was telling them, पर मैं उनसे कह रहा था, never stop. कभी रुकना नहीं. Because it's not about you. क्योंकि आपके बारे में नहीं है. There will come a time you will say that I have money to pay the bills. ऐसा समय आ सकता है कि जब आप कहे कि मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसा है. I can eat whatever I want. मुझे जो चाहिए मैं वो खा सकता हूँ. Whatever car I can drive. कोई भी गाड़ी में चला सकता हूँ. Whatever clothes I can wear. कुछ भी कपड़े में पहन सकता हूँ. Any hotel I can go if I want to. अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी होटल में जाके रुक सकता हूँ. I have so much. मेरे पास इतना है. Why do I need more? मुझे और की जरूरत क्यों है? I said never say that. मैंने कहा वैसा कभी मत बोलना. Because it's not about you, it's about our dad. क्योंकि ये आपके बारे में नहीं, हमारे पिता के बारे में है. And because it's about our dad, we will break all limits. और क्योंकि ये हमारे पिता के बारे में, हम हर एक सीमाओं को तोड़ेंगे. It's not just about your need or your bills. No, it's about our dad. So we must cross all limits of prosperity so that we will keep sponsoring our dad's agenda. और ये हमारे बिलों के भुगतान इनके बारे में नहीं है, ये हमारे पिता के बारे में, ताकि हम और ऊपर बढ़ते जाए, सारी सीमा को तोड़े और उसके कार्यों के लिए हम प्रयोजन करते रहे. Like some humble people will say, कोई दीन व्यक्ति कहेगा, so much we have. कितना है हमारे पास, और नहीं चाहिए. We can't be selfish. हमें स्वार्थी नहीं होना है. Life is not about you. जीवन हमारे बारे में नहीं है. It's about our dad. ये हमारे पिता के बारे में Go है. for higher realms. तो उच्च आयामों में जाइए. Go for greater realms. उच्च और महान It's आयामों में not जाइए. about your clothes. ये आपके कपड़ों के बारे It's में not नहीं है. about your bills. ये आपके बिलों के बारे में नहीं है. It's for our dad. ये हमारे पिता के बारे में Therefore, है. we must go the highest level of prosperity and keep giving to our father's agenda. कि इसलिए हमें समृद्धि के सबसे उच्च आयाम में जाना है और अपने पिता के कार्य के लिए प्रयोजन करते रहना है. So I was just guiding our sons. तो मैं मेरे आत्मिक बेटों को जरा सा मार्गदर्शन दे रहा था. I said never be tempted to say कि बहुत हो गया. और मैंने कहा कि कभी भी तुम्हें इस बात का प्रलोभन ना हो कि तुम कहो कि मुझे बहुत हो गया. Since when did you start living for yourself? कब से आप खुद के लिए जीने शुरू किया आपने? You're not living for yourself. आप अपने खुद के लिए नहीं जी रहे. You're living for your dad. अपने पिता के लिए जी रहे हैं. You're living for his agenda. आप उसके कामों के लिए जी रहे हैं. Keep going higher. तो सिर्फ ऊपर जाते रहिए. Don't say it's enough.
कभी मत कहिए कि बहुत हो गया. Don't say बहुत ज़्यादा हो गया. Don't say it. Just let it keep coming so that it will keep going and it'll keep going for daddy's work and it'll keep going for daddy's work and it'll keep going for daddy's work, and the more it goes for daddy's work, daddy will decorate you, daddy will keep decorating you, and he will keep decorating you, and he'll keep decorating you, and your prosperity will shock your relatives. और आप कभी मत कहिए कि बहुत ज्यादा हो गया, उससे आने दीजिए ताकि आपके हाथ से और जाता रहे और जाता रहे और परमेश्वर के कामों के लिए जाता रहे, और परमेश्वर आपके जीवन को सजाएगा, वो सजाते रहेगा, और वो आपकी समृद्धि देखकर आपके सारे रिश्तेदार जो है वो चौंक जाएंगे. क्या करूं मैं इतने का? How selfish. How selfish. कितना स्वार्थी है ये. Why don't you think about dad? आप पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? Why don't you think about him? आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? Let's think about him. उसके बारे में सोचते And हैं let's go even higher. और ऊंचे आयामों में जाए. We are not here just to pay bills, are we? हम यहाँ पे सिर्फ क्या हमारे बिलों का भुगतान करने के लिए है? Are we only here to pay all of our bills and have 10% in savings? No. क्या हम यहाँ पे इसीलिए कि हम सारे बिलों को भरकर 10% हमारी सेविंग्स में रखे? No, we are here for dad. नहीं, हम यहाँ पे अपने पिता के लिए So हैं. he says, I labor more abundantly. Grace makes you exceedingly diligent. It will destroy laziness from your life. उसने कहा मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया. अनुग्रह आपको अत्यधिक परिश्रमी बनाता है और वो आपके जीवन से आलसीपन को नष्ट कर देता है. Every son, every daughter, every husband, every wife, every father, every mother, everyone who is actually looking at Jesus becomes exceedingly diligent. हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक माता पिता, हर एक पति, हर एक पत्नी, हर एक भाई, हर एक बहन जो भी यीशु मसीह को देखता है वो अत्यधिक परिश्रमी बन जाता है. Colossians 1:29. कोलोसियो 1:29. Somebody says, मैं बहुत lazy हूँ. कोई कहता है कि मैं बहुत आलसी हूँ. No problem. इसमें कोई Just दिक्कत look नहीं at है. Jesus. सिर्फ यीशु को देखिए. Somebody says, I get angry, so angry, pastor. What's the solution? कोई कहता है कि पास बार में बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, उसका समाधान क्या है? I have a problem with sin. I am struggling with sin, pastor. What's the problem? What's the solution? मैं पाप के साथ बहुत संघर्ष कर रहा हूँ पास्टर, उसका समाधान क्या है? Why I'm so lazy? क्यों मैं इतना आलसी हूँ? Well, the solution is simple. Start looking at Jesus. समाधान बहुत सरल है, आप यीशु मसीह को देखना शुरू The करें. more you look at him, the more grace flows to you, and that grace will make you exceedingly hardworking. और जितना आप उससे देखेंगे उतना अनुग्रह आपकी ओर बहेगा और उतना अत्यधिक लगनशील और अत्यधिक परिश्रमी आप बन जाएंगे. Where see, this is Paul, still Paul talking. और यहाँ पे अभी भी पौलुस ही बात कर रहा है. Where also I also labor, Paul is saying, I labor striving according to his working. सब बोलिए his working. His working. थोड़ा जोर से बोलिए his working. His working. Now, which worketh in me mightily. और वो कहता है कि इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ. He said, I work according to his working. वो कहता है कि मैं उसकी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता हूँ. In this also he is giving glory to Jesus. How, what an amazing man. इस चीज में भी वो यीशु मसीह को महिमा दे रहा है. कितना अद्भुत व्यक्ति है ये. He said, I work according to his working. वो कहता है कि मैं काम भी उसकी शक्ति के अनुसार करता हूँ. He is giving me the strength and I am working. वो मुझे सामर्थ्य देता है और मैं वो कार्य को करता हूँ. I'm looking at him. मैं उसे देख रहा हूँ. He is giving me grace and I am working. वो मुझे अनुग्रह दे रहा है और मैं कार्य कर रहा हूँ. Lot of things will come out of you. बहुत सारी चीजें आपसे बाहर आएंगी. Whatever God has put out of you, when you become a grace worker, everything will come out of you. परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत सारी चीजों को रखा है. जब आप एक अनुग्रह से काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे बहुत सारी चीजें आपसे बाहर आएंगी. How? He says, I labor, I work. वो कहता है कि मैं परिश्रम करता हूँ, मैं काम करता हूँ. But I work according to his working
which is working in me. पर मैं उसकी सामर्थ के अनुसार कार्य करता हूं जो मुझ में कार्य करती है। You will work more than your colleagues. आप अपने काम करने वाले जितने भी आपके कर्मचारी हैं, उनसे कहीं अधिक आप काम करेंगे। They work for money, you work for your dad. वो पैसों के लिए काम करते हैं, अपने पिता के लिए काम करें। That's a big difference. ये बहुत बड़ा अंतर है, Because your dad holds all the company in his right hand. क्योंकि आपका पिता सारी कंपनियों को अपने दाहिने हाथ में समाये रखता है। All the silver and gold are in his pocket. सारा सोना चांदी उसके जेब में है। So work for your dad. तो अपने पिता के लिए काम करें। He says, I labor. वो कहता है कि मैंने परिश्रम किया, I work hard. मैं लगन से काम करता हूँ। But it is according to his work. He's working which works in me. पर ये उसकी सामर्थ है, उसकी शक्ति है जिसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ, जो मुझ में कार्य करती है। Somebody asked Paul, how are you getting this strength, man? You are putting all the apostles behind. कहाँ से आ रहा है ये strength? तो कोई कहता है कि पौलुस आपको ये सामर्थ कहाँ से मिल रहा है? आपने सारे प्रेरितों को पीछे छोड़ दिया, आपको सामर्थ कहाँ से मिल रही है? सोच के देखिए, 12 चेले यीशु के साथ चले, यीशु के साथ चले, उनको छुआ, यीशु को छुआ, यीशु से रोटी को लिया, और एक नया व्यक्ति आता है जो यीशु के साथ चला नहीं, यीशु के साथ बैठा नहीं, ओके? और ये व्यक्ति पौलुस, वो 12 चेलों से ज्यादा मेहनत करता है। 12 चेले पूछ रहे हैं, हम तो यीशु के साथ चले, हम तो यीशु के साथ बैठे, यीशु से हमने रोटी को लिया, और आप हम सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, ये कैसा हो गया? हाउ डिड इट हैपन? और ये कैसा हुआ? इट्स बाय ग्रेस। ये अनुग्रह के द्वारा हुआ। He says, he is working which works in me. वो कहता है उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में कार्य करती है। अगर आपको if you like to be diligent, please say this verse personally every day. That's what I do. अगर आप चाहते हैं कि आप भी परिश्रमी हो जाए तो आप व्यक्तिगत तौर से ये वचन अपने लिए बोले, मैं भी बोलता हूँ। I work according to his working which works in me mightily. मैं उस सामर्थ के अनुसार कार्य करता हूँ जो मुझ में कार्य करती है। So notice he is working hard but not by his strength. He is working hard by God's strength, which is grace, divine empowerment. अब देखिए कि वो परिश्रम से काम कर रहे हैं, अपनी खुद की शक्ति पर नहीं, पर उस शक्ति के द्वारा जो परमेश्वर से आती है, और वो शक्ति जो है वो अनुग्रह है। All the young people listen to me. You're going to become extremely hardworking if you understand grace. और जितने भी जवान लोग हैं मुझे कृपया सुनिए, आप बहुत ज्यादा अत्यधिक परिश्रमी हो जाएंगे अगर आप अनुग्रह की समझ को जान ले। No laziness complaint from your parents. आपके माता पिता से कोई भी आलसीपन की शिकायत नहीं आएगी। Your testimony will be hard working testimony in your house. आपकी गवाही आपके घर में कठिन मेहनत या अत्यधिक परिश्रमी वाली गवाही होगी। He says, I work. उसने कहा मैं कार्य करता हूँ, But it is according to his working which works in me. पर वो उसकी शक्ति के अनुसार काम करता हूँ जो मेरे अंदर कार्य करती है। He says something is working in me. वो कहता है कुछ तो मेरे अंदर कार्य करता है, It is supplying strength to me. वो मुझे सामर्थ दे रहा है। It is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। You will do more than your colleagues. आप अपने कलीग से कहीं अधिक काम करेंगे। सब बोले hallelujah. हालेलुया। You will do more than your colleagues. आप अपने काम करने वाले मित्रों से कहीं अधिक काम करेंगे। They don't have what you have. उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। They only have human strength. You have grace. उनके पास सिर्फ मानवीय शक्ति है, आपके पास अनुग्रह है। You have grace. आपके पास अनुग्रह है। Now see, believers didn't know this. विश्वासी इन चीजों को नहीं जानते थे, But as you grow in the revelation of Jesus Christ, you become a hard worker. पर जैसे आप यीशु मसीह के प्रकाशन में बढ़ेंगे आप मेहनती हो जाएंगे। Amen. आमीन। Okay, last slide. आखिर का स्लाइड। I think this is the last. Yes, this is the last one. The more you behold Jesus, the more grace multiplies. जितना अधिक आप यीशु को निहारते हैं उतना ही अधिक अनुग्रह बढ़ते जाता है। Somebody says, how do I become hard worker, pastor? How do I become hard worker? तो कोई कहता है कि पासवान में और अत्यधिक परिश्रमी कैसे बनूं? Just look at him. सिर्फ उसे देखिए, Study his life. उसके जीवन को सीखिए। The disciples were shocked.
चेले चौंक गए थे, How is this guy such a hard worker? ये व्यक्ति कैसे इतना परिश्रमी हो सकता है And he's not doing it for money. और ये पैसों के लिए भी नहीं कर रहा। I know of people who work hard for money, मैं जानता हूं उन लोगों को जो पैसों के लिए काम करते हैं, and I know some people who don't work at all unless you give them money. और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जब तक वो काम नहीं कर, जब तक आप उन्हें पैसे ना दे। So money should not be the motivation of work. The Father should be the motivation of work. तो पैसा आपके काम की प्रेरणा नहीं, परंतु परमेश्वर पिता आपके काम की प्रेरणा होनी चाहिए। Because all the silver and gold is in his pocket. क्योंकि सारा सोना चांदी उसके जेब में पड़ा है। कोई बोला प्रभु थोड़ा पॉकेट से निकाल के दे दो प्रभु। All the silver and gold are in his pocket, all of it. सारा सोना चांदी उसके जेब में पड़ा है। So our motivation of our labor is not money, it's our dad. तो हमारे परिश्रम का जो प्रेरणा है वो पैसा नहीं, वो परंतु हमारा पिता है। Because money can limit you. क्योंकि पैसा आपको सीमित रख सकता है। Because if you want to work fully out of your heart, you have to got to work for your dad. क्योंकि अगर आपको पूरे हृदय के साथ कार्य करना है, काम करना है, तो आपको पिता के लिए ही काम करना होगा। The more you behold Jesus. जितना अधिक आप यीशु को निहारते I हैं। was sitting here, come Abhishek, I was sitting here and I was thinking, Lord, you said, my father works, so I work. मैं यहाँ पे बैठा था और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर आपने, यीशु आपने कहा कि मेरा पिता कार्य करता है, इसलिए मैं भी कार्य करता हूँ। So on the Sabbath, he did something. तो सब्बत के दिन उसने कुछ किया। And so the people were mad and they said that, how can you do some things on the Sabbath? तो लोग चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि तुम शब्बात के दिन ये सब चीजें कैसे कर सकते हो? And Jesus said, you know why I did it on Sabbath? Because my father works, so I work. उसने बोला आपको पता है मैंने शब्बात के दिन ये चीजें क्यों की? क्योंकि मेरा पिता कार्य करता है, इसलिए मैं भी कार्य करता हूँ। And so when you look at him, और जैसे आप उसे देखेंगे, किसी और की तरफ मत देखिए, यीशु की तरफ देखिए, उसको, क्योंकि अनुग्रह सिर्फ उसमें से आता है, only through him. There is no other way. कोई और दूसरा तरीका नहीं है। And what you need for the next level is not suggestion, it's grace. और आपको अगले स्तर की जो आपको जरूरत है वो कोई सुझाव की जरूरत नहीं, वो अनुग्रह है। And so, Lord, I want to change my levels. पिता मैं अपने स्तरों को बदलना चाहता हूँ। And you look at him, जानबूझ के you look at him. और आप जानबूझ के उसको निहारते हैं। And I say, he said, my father works. So I'm looking at that verse. My father works. मेरा पिता काम करता है, इसीलिए मैं काम करता हूँ। उस वचन को आज निहारते हैं। Jesus said, my father works, so I work. Just look at that verse. सिर्फ वो वचन को देखिए जिसमें कि यीशु कहता है कि मेरा पिता काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूँ। So सवाल पूछिए, मैं काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा पिता काम करता है। वाह! एक और बार, मैं काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा पिता काम करता है। तो काम करने का उद्देश्य क्या है? पिता। You look at that verse. आप उस वचन को देखते हैं। And you look at that verse. आप उस वचन को देखते हैं। And you know what happens when you look at that verse? और आपको पता है क्या होता है जब आप उस वचन को देखते हैं? He changes your entire direction. काम करने का मतलब बदल देता है वो. That's what he is. और ये वो है। He changes the entire trajectory of your life. वो आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है। My father works, so I work. मेरा पिता काम करता है, इसलिए मैं भी काम करता हूँ। So I took that verse and I'm looking at that verse. चारों दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, I'm looking at that verse. So why should I work? तो मैंने वो वचन को लिया, मैंने ऊपर नीचे चारों दिशा से उसे देखना शुरू किया और मैंने कहा कि मुझे काम क्यों करना है? Why should I work? मुझे काम क्यों करना है? Because my father works. क्योंकि मेरा पिता भी काम करता है। So what's the motivation of work? तो काम का प्रेरणा क्या है? It's the father. वो पिता है। No one can pay you better than father. पिता से बेहतर आपको कोई भी तनख्वाह नहीं दे सकता। The more you behold Jesus, the more grace multiplies. जितना अधिक आप यीशु को निहारते हैं उतना ही अधिक अनुग्रह बढ़ता जाता है। Let's look at this verse. इस वचन को देखेंगे। This is Apostle Paul speaking. ये प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। He is 60 years old. वो अभी 60 वर्ष के हैं। Established lot of churches. बहुत सारी कलीसिया की स्थापना उन्होंने की है। Raised up many leaders. बहुत सारे अगुओं को खड़ा किया है। Written 13 epistles. 13 पत्रियां लिखी है। After all of this success, look at his statement. ये सब सफलता के बाद उसके वाक्य रचना को आप देखिए। That I may know him.
कि मैं उसे और जानूं। No wonder such grace flowed in his life. इससे कोई ताजुब की बात नहीं है कि इतना अधिक अनुग्रह उनके जीवन में बहा। Established churches, कलीसिया की स्थापना की, wrote letters, पत्रियां लिखी, raised up leaders, अगुओं को खड़ा किया, went to the third heaven, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गए, abundance of revelation. बहुत ज्यादा प्रकाशन मिला। After that, what does he say? उसके बाद वो व्यक्ति क्या कहता है? You know, I want to know Jesus more. वो कहते हैं कि मुझे यीशु को और अधिक जानना है। No wonder grace flowed in his life such strongly. इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि अनुग्रह उनके जीवन में इतना सामर्थ्य रूप से बहा। Because the more you look at him, क्योंकि जितना आप उसे देखेंगे, that's what Paul was doing. यही तो पौलुस भी कर रहा था। He didn't let success distract him. उसने सफलता को उसको भरमाने नहीं दिया। I will say this and I'll close. मैं कहकर समाप्त करूंगा। I was telling the Ahmednagar team, मैं अहमदनगर टीम से बात कर रहा था। I was telling them, you know, this Nagpur conference and Nagar conference, we have done what many pastors have not done for a long time. और मैंने उनसे कहा कि जो नागपुर का कॉन्फ्रेंस था, नगर वाला कॉन्फ्रेंस था, हमने वो चीजों को किया जो बहुत सारे पासबान नहीं कर सके। But don't take it as your success. पर इसे अपनी सफलता मत बनाना। Our success is when we come back home and when we have a strong relationship with Jesus Christ. That's our success. हमारी सफलता ये है कि जब हम घर वापस फिर लौटे तो हमारे यीशु के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो। And that's what we learn from here. और यही बात हमने यहाँ से भी सीखी। He says that I may know him. ताकि मैं इसे और जानूं। And when he knows him more, more grace comes to him. और जैसा उसे जानेगा वैसा अनुग्रह उसकी ओर बढ़ेगा। And more grace comes to him. और अनुग्रह उसकी ओर आएगा। Just looking at him. सिर्फ उसे निहारे। That one verse Jesus said, "My Father works, so I work." सिर्फ वो एक वचन यीशु ने कहा कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। आप जब स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाने के बाद काम कभी बंद नहीं होगा. Work will not stop. काम कभी बंद नहीं होगा। Some people have a wrong image of heaven. Like on that sofa you will be sitting and people will be giving you grapes, they think. कई लोगों का बहुत गलत तस्वीर है स्वर्ग के बारे में कि वहाँ पे एक सोफा है, वहाँ पे आप बैठेंगे आराम से और आपको लोग फल खिलाएंगे। And angels will bring with grapes, and other angel will come with juice, and you will sit there and you will enjoy your life. कि एक स्वर्गदूत वहाँ पे फल लेके आएगा, एक स्वर्गदूत आपके लिए जूस लेके आएगा और आपका जीवन आराम से भरा होगा। Work is assignments. काम जो है वो कार्यभार है। Once we move out of here, our assignment changes. हम यहाँ से जाने के बाद हमारा कार्य दूसरा होगा। But work never stops. पर काम कभी खत्म नहीं होगा। We finish the marriage supper, we come back to the earth for 1,000 years. Work continues. हमने उस मेमने के विवाह के जो भोजन है उसका लुत्फ उठाया, उसके बाद हम 1000 साल के लिए वापस पृथ्वी पर आएंगे। So right now we must learn to work for the Father, because that's how it's going to be in eternity. तो अभी हमें पिता के लिए काम करना सीखना, क्योंकि अनंत काल में यही चलेगा। All of us work on assignments. हम सब कार्यभारों पर काम करते हैं। Locations, and there is no retirement for you because assignments never stop. और आपके लिए कोई भी रिटायरमेंट नहीं, क्योंकि कार्यभार कभी रुकते नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Please stand everyone, let's pray. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's minister to the Lord for a moment. हम थोड़ा देर परमेश्वर की उपासना करेंगे। Think about this verse. My Father works, so I work. इस वचन को सोचिए इस बारे में कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। Why did you heal people on the Sabbath, Jesus? क्यों यीशु मसीह आपने सब्बात के दिन लोगों को चंगा किया? He said, "My Father works, so I work." उसने कहा कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। How beautiful. कितना सुंदर है ये। He said, "Why did you go to that village?" उसने कहा कि तुम उस गांव में क्यों गए? My Father works, so I work. मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। Why did you go to the cross? आप क्रूस पर क्यों गए? That's not a great place. अच्छी जगह नहीं वो जाने के लिए। He said, "My Father works, so I work." वो कहता है कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। He taught us how kings live. उसने हमें सिखाया कि राजा कैसे जीते हैं। We were all living like slaves. हम सब गुलामों की तरह जी रहे थे।
but he came and he showed us how kings live. पर वो आया, उसने दिखाया कि राजा कैसे जीते हैं. Salamante, just sing in tongues for a while. आइए अन्य भाषा में.